Hi guys. So let's read our first chapter, A Letter to God. तो मैं एक बार पढ़ूंगी and then after a point I'll explain the text. और उसके बाद फिर से I'll read ahead and then मैं वो explain करूँगी. ठीक है, ये पैटर्न हम फॉलो करेंगे. यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए. नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगी एंड आप डिक्शनरी में भी देख सकते हैं. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Now, we are really going to get some water, woman. The woman, who was preparing supper, replied, Yes, God willing. The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, Come for dinner. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. तो यहाँ तक एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो जो घर था इस वैली में ये इकलौता घर था. तो एक लो हिल था, मतलब हाइट में थोड़ा छोटा था और उसके क्रेस्ट यानी उसके टॉप पर एक वो घर था छोटा सा. एक डायग्राम मैंने आपको एक छोटा सा बना के दिखाया. एंड यहाँ से आप रिवर देख सकते थे एंड अ फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो भुट्टे थे वो पके हुए थे. एंड एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वो था डाउन पोर यानी बारिश. एंड लेंचो जो है उसको उसके फील्ड इंटीमेटली यानी बहुत बारीकी से पता थे. एंड वो नॉर्थ ईस्ट में स्काई की तरफ देख रहा था और ही वॉज लॉन्गिंग फॉर रेन. तो उसने अचानक से बोला कि नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, मतलब अब शायद लगता है बारिश होने वाली है फाइनली. तो जो वुमन थी वो सपर बना रही थी, वो डिनर बना रही थी और उन्होंने कहा कि हाँ भगवान की मर्जी हो तो शायद बारिश हो जाए. तो जो बड़े बच्चे थे, जो बड़े लड़के थे उनके, वो खेत में काम कर रहे थे और छोटे वाले घर के बाहर खेल रहे थे. और जो भी वो औरत है शायद उनकी माँ हो, मोस्टली मुझे लगता है उनकी बीवी है, यहाँ पर एग्जैक्टली बताया नहीं है कौन. तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि आ जाओ खाने डिनर के लिए आ जाओ. तो जैसे ये मील खाने बैठे, जैसे लंचो ने प्रिडिक्ट किया था कि बारिश होगी, उसी तरह बारिश हुई. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल और ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, मतलब बहुत बड़े बड़े घने बादल आए. और लंचो ने यही कहा कि ये जो बारिश गिर रही, जो बूंदें गिर रही है, ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं, दीज आर लाइक न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों की तरह है. जो बड़े ड्रॉप्स हैं आप उसे 10 सेंट मान सकते हो और जो छोटे वाले आप उसे 5 सेंट मान सकते हो. तो इसे पैसे से इसलिए कंपेयर किया है क्योंकि अच्छी बारिश, ज़्यादा बारिश से ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, ज़्यादा अच्छे खेती होगी, अच्छी फसल होगी. तो उससे कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए उसे कॉइन्स के साथ कंपेयर किया गया है बारिश को. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly, a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. It is really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For over an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white, as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, A plague of locusts would have left us more than this. The hail has left nothing. This year we will all have no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We'll all go hungry this year.
लेंचो काफ़ी सेटिस्फाइड था कि यार मैं जैसा प्रिडिक्ट किया था वैसी बारिश हो रही है। एंड बट अचानक से तेज़ हवा चलने लगी और ये जो बारिश है ये हेल स्टोन्स यानी बर्फ़ के गोले, जब बर्फ़ पड़ती है तो ये बर्फ़ में बदल गई। और अब क्योंकि स्नो इज़ मोर सॉलिड, या वो ज़्यादा एक स्नोफ्लेक रिजेंबल्स मोर अ कॉइन दैन अ वाटर ड्रॉप डस, तो इसलिए कहा है कि एक्चुअली ये फ्रोजन पर्ल्स जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि वाइट कलर के स्नोफ्लेक्स गिर रहे हैं, स्नो के हेल स्टोन यानी स्नो के गोले गिर रहे हैं बेसिकली। तो एकदम फ्रोजन पर्ल्स जैसे दिख रहे हैं वो। और उनके जो बेटे हैं वो बाहर भागे वो बर्फ़ में खेलने के लिए। एंड लेंचो ने यही कहा कि यार अब तो कुछ ज़्यादा हो रहा है, आई होप ये जल्दी ख़त्म हो जाए वरना दिक्कत हो जाएगी। बट ये हेल स्टॉर्म है, ये जल्दी ख़त्म नहीं हुआ और 1 घंटे तक करीबन बाहर बर्फ़ पड़ती रही। एंड उनका जो पूरा खेत है वो वाइट स्नो में ढक गया। पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं बचा था, सारा कॉर्न डिस्ट्रॉय हो गया बिकॉज ऑफ द स्नो। एंड ऑब्वियसली लेंचो बहुत ज़्यादा सैड हो गया, क्योंकि साल भर उन्होंने मेहनत करके फसल उगाई थी, वो होप कर रहे थे कि अच्छी फसल उगेगी और पैसे आएंगे, बट सब कुछ बर्बाद हो गया। तो उन्होंने अपने बेटों से यही कहा कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब इंसेक्ट्स, लोकस्ट है बेसिकली इंसेक्ट्स, तो अगर आके हमारे पूरे खेत में इन्फेस्ट कर देते, वो अगर आके हमारे सारे क्रॉप्स खा जाते तो भी ज़्यादा बचता, मतलब अगर इन्फेस्टेशन हो जाता लोकस्ट का तो भी ज़्यादा बचता एज कम्पेयर टू अब तो लिटरली कुछ नहीं बचा है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया स्नो के वजह से। तो वो कहता है कि अब हमारे पास कुछ है नहीं, हमारी कोई मदद करने को है नहीं, हम ये साल हम सब भूखा रहेंगे, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, जो जरिया था वो भी बर्बाद हो गया। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, help from God. Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, walking like an animal in the fields. But still, he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter, which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. God, he wrote, if you don't help me, my family, and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. But almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. Starting up a correspondence with God?" तो अब उस घर में जो भी लोग रहते थे, इन दैट सॉलिटरी यानी जो अकेला घर था, लोनली हाउस था, वो उस घर में जो भी इंसान रहते थे उन सबके मन में एक विश्वास तो था, वो था कि भगवान मदद करेंगे, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो वही कहा उनकी वाइफ ने कि इतना अपसेट मत हो, ये लग रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, बट इतना याद रखना कि कोई भूख से नहीं मरता, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो पूरी रात लेंचो बस सोचता रहा, जो उसकी एक और आखिरी उम्मीद थी वो थी भगवान की, कि भगवान मदद करेंगे। एंड उसे यही कहा गया था बचपन से कि भगवान सब देखते हैं, वो चीज़ें भी देखते हैं जो तुम्हारे मन के भीतर चल रही है, जो किसी और को नहीं दिखती, वो भगवान देखते हैं। एंड लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग आदमी था। एंड बट ऐसा नहीं था कि वो फार्मर है तो वो अनपढ़ था, उसे लिखना आता था। तो उसने संडे को सोचा कि लेटर लिखते हैं भगवान को। तो ही रोट के, भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार
ये साल भूखा रहेंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया, मुझे 100 पेसोस चाहिए। तो पेसोस है वहाँ की करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। तो उसने लिखा है कि मुझे 100 पेसोस चाहिए इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। मुझे फिर से जब नए बीज बो के फिर से जब खेती का राउंड शुरू करना है ताकि अगले साल फसल उगे, तो तब तक सर्वाइव करने के लिए और वो बीज के लिए मुझे इतने पैसे लगेंगे। फिर उसने एनवेलप पर लिखा टू गॉड और पोस्ट ऑफिस गया, वहाँ पर स्टैंप लगाकर उसने मेल बॉक्स में लेटर डाल दिया। अब वो पोस्ट ऑफिस में जो एक पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में एक एम्प्लॉय जैसे भी हेल्प करता था, तो उसने जब वो लेटर देखा वो हंसते हंसते पोस्ट मास्टर के पास गया कि ये देखिए ये कितना फ़नी है कि किसी ने भगवान को एक्चुअली लेटर लिखा है। जो पोस्ट मास्टर थे वो एक मोटे एमिएबल यानी फ्रेंडली प्यारे आदमी थे, वेरी जोवियल। तो उन्होंने भी जब भी देखा तो वो खुद हंस पड़े, बट अचानक से वो सीरियस हो गए और उन्होंने कहा कि पोस्ट मास्टर ने कि कितना फेथ, कितना ज़्यादा भरोसा है इस व्यक्ति को भगवान में, इतना ज़्यादा अटूट विश्वास है उसका भगवान में। वो कहते हैं कि काश मेरे पास भी उतना विश्वास होता जितना इस व्यक्ति के पास है जिसने ये लेटर लिखा है। सो इन ऑर्डर टू नॉट शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer the letter, he needed more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as signature, God. तो पोस्ट मास्टर ने सोचा कि यार इसका जो ये इतना अटूट विश्वास है भगवान में, ये मुझे तोड़ने नहीं देना है, ये बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, तो मैं ये लेटर आंसर करूँगा। पर जब उन्होंने लेटर खुल के पढ़ा तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अच्छी नीयत, एक कलम और कागज़ के अलावा उन्हें एक्चुअली पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी ताकि वही लेटर आंसर कर पाए। बट उन्होंने ठान लिया था तो ही स्टक टू इट। उन्होंने अपने फ्रेंड से, उनके जो को वर्कर्स थे, सबसे कुछ कुछ पैसे मांगे कि आप जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो दे दो। उन्होंने खुद ने उनकी सैलरी का थोड़ा हिस्सा उसमें इकट्ठा किया एंड बट ऐसा हो गया था कि पूरे 100 पेसोस इकट्ठा करना तो उनके लिए नामुमकिन हो गया। तो आधे से थोड़ा ज़्यादा रकम जमा हुई थी जो उन्होंने एक लेटर में लेंचो को एड्रेस करके डाल दिया। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who had handed the letter to the postmaster. Experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Immediately, Lencho went up to the window asking for a paper and ink. On the public writing table, he started to write, with much wriggling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stack which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I had asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. तो जो अगला शनिवार था, अगला संडे था, तब लेंचो रोज़ के समय से जल्दी आ गया बिकॉज ही वॉज एक्साइटेड कि हाँ रिप्लाई आया होगा, मुझे मेरे पैसे मिले होंगे। तो जब उसने देखा कि तो जो लेटर हैंड ओवर किया वही पोस्टमैन था जिसने एक्चुअली लेटर पहली बार में खोला था एंड अपने ऑफिस से पोस्ट मास्टर देख रहे थे। उनके मन में एक स्माइल थी कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है और उन्हें बस देखना था लेंचो का रिएक्शन। पर लेंचो बिल्कुल भी चौंका नहीं था। उसने जब एनवेलप खोला उसमें पैसे देखे बिकॉज उसका इतना फेथ था भगवान में कि उसने भगवान से पैसे मांगे हैं तो पैसे तो आने ही है, तो इसमें चौंकने वाली क्या बात है, कह रही पैसे आ गए।
नहीं, भगवान से मांगे थे, भगवान ने दे दिए, ख़त्म हो गया। बट जब पैसे गिने तो लेंचो को आया गुस्सा। तो उसे पता था कि भगवान ने तो गलती नहीं की होगी और ना ही वो लेंचो को उसके हक का जितना उसने मांगा था वो रकम उसे मना करेंगे। ही विल नॉट डिनाई हिज रिक्वेस्ट। तो तुरंत लेंचो गया जो पब्लिक राइटिंग टेबल का जो काउंटर था वहाँ पर उसने पेन और पेपर मांगा और ही स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर एंड फिर से एक स्टैम्प चिपका कर ही पोस्टेड द लेटर। तो जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में गिरा, पोस्ट मास्टर ने आकर उसे खोला बिकॉज शी वांटेड टू नो कि लेंचो ने क्या लिखा है लेटर में। तो लेटर में लिखा था कि भगवान मैंने आपसे जितने पैसे मांगे थे उसमें से बस 70 पैसों ही मुझ तक पहुँचे हैं, बाकी का जल्दी से जल्द मुझे भेज देना। बट जो बचे हुए पैसे हैं वहाँ पोस्ट से मत भेजना, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ हैं दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स मतलब ये सारे चोर हैं। ये जो तो लेंचो को यही लग रहा है कि जो मेरे 30 पैसों मुझे नहीं मिले हैं वह पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने बेसिकली चोरी कर लिया है। तो वो कह रहा है कि आप बची हुई रकम पोस्ट से मत भेजना। एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप यू लाइक्ड इट। ऑलराइट, बाय बाय।